माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, good morning to all. Good morning to all. Now, papers to be laid on the table. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. With your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name, its serial number 1 in today's revised list of the business. Sri Santosh Kumar Gangwar. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in the today's revised list of business. Thank you. Sri Arjun Ram Meghwal. Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in the today's revised list of business. Thank you. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Sri P. Chidambaram. Sri Majid Memon. Sir, with your honest leave, I beg to present the 204th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep. Thank you. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Sri Mukul Roy. Absent. Kumari Selja. With your permission, sir, I beg to present the 249th report on the Merchant Shipping Bill 2016 and 250th report on the Major Port Authorities Bill 2016 of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Thank you. Report of the Public Accounts Committee, Sri Sugandhar Shekhar Roy. Sir, with your permission, I beg to lay on the table a copy of each in English and Hindi of the following papers of the Public Accounts Committee 2016-17. 175th report of the subject performance of import and export trade facilitation. Number 2, 760 report on action taken by the government on the observation and recommendations of the committee contained in the 43rd report. Number 3, 77th report on action taken by the government on the observation and recommendations of the committee contained in the 63rd report. Number 4, 78th report on the subject stressed asset stabilization fund. And 5, 79th report on action taken by government on the observation and recommendations of the committee contained in their 91st report on Others Cooperative Housing Society, Mumbai. Thank you. Announcement by Chair. I have to inform members that a letter has been received from Sri Kunal Kumar Ghosh stating that due to the restriction of not leaving the jurisdiction of Narkalinga Police Station imposed by the High Court of Calcutta, in the interim bail granted to him, he is unable to attend the sittings of the current 243rd session. He has therefore requested for grant of leave of absence for 243rd session. Does he have the permission of the House for remaining absent from the 17th July to 11th August 2016 during the current session of the Rajya Sabha? I hope the House agree. Now, permission therefore to remain absent is granted. हमारी पार्टी ने देश में जो दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको लेकर If all of you no, I am ready to allow one by one. I am ready to allow one by one. If all of you resume the seat. No, please. I am ready to allow one by one. If you all of you resume the seat. Vidila, please go back. Go back. I will allow you. Go there. I will allow. I am ready. Yes, I am ready to allow. But please go back. No, listen. No, listen. Please, see, I know the members are agitated. Please, listen to me. See, I am coming. Listen to me. आप सुनिए.
सुनिए, पहले सुनिए. I know the members are agitated on various issues. I am ready to listen to you one by one. Please go back. All of you go back. Resume the seat. All of you resume the seat. All of you resume the seat. Oh, please, no, go back. Go back. I think Kumari Mayawati stood up first, so I am allowing only 3 minutes. Yes. इनको तो बैठाया पहले. I will allow you also. इनको तो बैठाया. Please go back. No seat. No, please. प्रेस कर लीजिए. I will call you also. Yes. No, since Kumari Mayawati stood up first, I am allowing here. After that, I allow one by one. Please go back. Please go back. Yes, I will call you. I will give also. Yes. Now sit down. Yeah, please. No, I first. Yes, I will allow you also. Go back. Go back. I will allow. Vigila, please go back. I allow everyone. I will allow you also. Kumari ji, take only 3 minutes. Yes, please go back. I will allow you also. Kumari ji, take only 3 minutes. After 3 minutes, I will stop. That I am particular. माननीय सभापति जी, इम्पोर्टेंट मामला है. 3 मिनट से काम नहीं चलेगा. कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए. माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो. आप सुनिए. अरे सुनिए. ये 267 मात्र है. चलो. मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है. और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है. जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था. लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी. लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने दो. पूरी बात अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात रखने दीजिए. तो मानने ये ठीक नहीं है. ये 3 मिनट हो गया. अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है. माननीय उपसभापति जी, 3 मिनट में बोलना है. सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है.
आई तरह करने हौसले बोल। माननीय सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे। तो वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात को कहने दो सर, ये आई अलाउड यू, आई टोल्ड यू 3 मिनट, मेरी बात ठीक नहीं है ये, भाई मेरी बात so now you made your point, I understood, नहीं ये you made your point, I understood, नहीं I have to allow others also, I allowed you first, notice है, no 0 hour नहीं है ये, you cannot monopolize, no don't do that, 0 hour नहीं है ये, स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला आप 3 मिनट बोलना है, मेरी थोड़ी और बात है, अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, मैंने बोला 3 मिनट, 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं, अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो, अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो मैं कहना चाहती हूँ इन 267 अगले महीने you can only ask for a discussion, that is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. गुलाम नबी आज़ाद। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हैं? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। लोगों को उधर मारा गया है, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ, मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति you can ask for a discussion, what more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक, मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। ओके, श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्री गुलाम नबी आज़ाद। यस मिनिस्टर, सुश्री मायावती जी मिनिस्टर तो अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी भी और उसकी हताशा और निराशा थी। और इसके साथ शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना, सर शेर को धमकी देना बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि शेर का अपमान है, और सर वो सारी बंद की जाए और माफी मांगे, ये तरीका
करना ठीक नहीं है। माफी मांगे। ओके, श्री गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद। ओके, गो अहेड, गो बैक प्लीज। ये बड़ा तरीका है इंशाल्लाह। अरे इनको आपने इनको कहे पीछे। ओके, ठीक है, नाउ प्लीज गो बैक। श्री गुलाम नबी आजाद, अरे गुलाम नबी आजाद, अरे बैठो भाई यार। गुलाम नबी आजाद प्लीज। अरे बैठ जाइए। श्री गुलाम नबी आजाद प्लीज, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। गुलाम नबी आजाद प्लीज। सर प्लीज लिसन टू सर, मुझे सिट डाउन। अरे बैठ जाइए ना, आप लोग बैठिए। अरे प्लीज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप बैठ जाओ प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सर। प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बैठिए, आप लोग बैठिए सर। अरे आप बैठिए प्लीज। सर, जब ऑल पार्टी मीटिंग परसों माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट बताया था कि विपक्ष हाउस को रोकने में, हाउस की कार्रवाई में बाधा डालने में कोई रुचि नहीं रखता। अगर अपोजिशन चाहती है तो वो सिर्फ जो देश में मुद्दे, जो तकलीफें हैं, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, दलित की हो, अल्पसंख्यक की हो, व्यापारी की हो, मजदूर की हो, उनको उठाना चाहेगी। और सरकार अगर उन पे चर्चा करने की इजाजत देती है, अनुमति देती है, तो हम सरकार का सहयोग देने, कानून पास करने के लिए सब रुचि रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, गृह मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था अपोजिशन कि हम बाधा नहीं डालेंगे। आप जिस चीज पे भी चर्चा करने चाहेंगे तो सरकार और उनकी रूलिंग पार्टी आपको उसकी इजाजत दीजिएगी। आज प्लीज, आज ये आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम नहीं बाधा डाल रहे हैं। हमने नोटिस दिया है। सुनिए प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज यू डोंट डिस्टर्ब। नोटिस दीजिए प्लीज। जिस मुद्दे पे भी आप चर्चा you are violating देंगे, आप गलत मुद्दे को उठाएंगे, हम तैयार हैं। promise made by your minister, the promise made by your ministers and the prime minister, you are going against that. Yeah, let me say, please let me complete. हम आज आप लोग आज एक नोटिस देके, नोटिस के बगैर नहीं बोल रहे हैं। नोटिस दिया है कि देश में कुछ अरसे से दलित, अल्पसंख्यक और ये जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी किसान और इनकी लिंचिंग हो रही है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और जब मायावती जी जब मायावती जी दलित की बात कर रहे थे, उनको कहा आपने कि हमें जनादेश मिला। हमें मालूम था आज तक जनादेश आपको मिला है अरे चुप बैठिए, सरकार चलाने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। इसके लिए अगर जनादेश आपको मिला है तो चले आइए अब सरकार, हम इस सरकार के साथ हैं। अरे चेयरमैन उपसभापति जी, आप सुन के जाइए, बिना सुने मत भागिए। उपसभापति महोदय, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो कहा है वो बेबुनियाद है। और आज साफ हो गई कि
कि जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया है, जनता का विश्वास उनके पर मजबूत किया है, साथ ही साथ वो संसद का भी सम्मान भूल गए। सतीश जी, सतीश जी एक मिनट। सर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, बहन जी मायावती जो ने बात कही वो बड़ी गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार, और साथ ही साथ हमारे किसान, हमारे किसान अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। ये सब मिलाकर इस सरकार को Let us discuss then instead of shouting slogans. Sir, I'm sorry, you are not allowing us to speak. Yeah. Government is ready for discussion. Have you ever ready for discussion? Disrupt the house. And this is what is happening. They cannot answer. They cannot answer all these questions. Government is ready for discussion. No, why don't you allow us to raise? हम हर मुद्दे पर these issues are not allowed to be raised. They are not willing. They are not willing to allow us to listen to us. And what are they willing to discuss? We are saying these are the issues. Attacks on Dalit, atrocities are growing. Attacks on minorities, atrocities are growing. That's why I'm saying farmers are being pushed to let us have structured discussion. Thousands are here in Delhi today, protesting, demanding what this government itself promised. They promised 1.5 times the minimum support price from input costs. 3 years, they have not done that. They have not done that. They have done that. They have promised. Therefore, instead of shouting slogans, let us have discussion. Declared on all these instances. Shouting slogans is no solution. Shouting slogans is no solution. We can discuss each subject. The chair is ready to allow discussion on all subjects you want. Therefore, I am requesting members to go back to their seat. Let us start discussion. House is adjourned up to 12:00 hours. Up to 12:00 hours.